Hello dear students, this is our fifth lecture of physics. हम क्रिस्टलाइन स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं. उसमें हमने क्रिस्टल लेटाइस, प्रिमिटिव लेटाइस सेल और यूनिट सेल, उसमें भी विग्नर सेट्स, यूनिट सेल, ये सब देखा. अब आज हम सिमेट्री ऑपरेशंस, पॉइंट ग्रुप्स एंड स्पेस ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं with the topic of symmetry operations, point groups and space groups. We have seen that in any crystal, the constituent particles are regularly arranged. In other words, the arrangement is symmetric. To describe the symmetry rigorously, the use is made of what are known as symmetry operations, starting with certain condition and applying a symmetry operation appropriate to the crystal structure. A crystal can be brought to the identical condition which cannot be distinguished from the previous one. Clearly, the symmetry operations for different crystal structure will be different. हमने देखा कि क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स हैं वो रेगुलरली अरेंज होते हैं. अदर वर्ड्स में कहें तो अरेंजमेंट जो होता है वो सिमेट्रिक होता है. उसे हम सिमेट्री ऑपरेशंस कहेंगे. जो उसका अरेंजमेंट होना सिमेट्री में, ये हमारा सिमेट्री ऑपरेशंस कहा जाएगा. और सर्टेन कंडीशंस और अप्लाइंग सिमेट्री ऑपरेशन एप्रोप्रिएट क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें मिलता है. और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल कंडीशन के साथ होता है जो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकता प्रीवियस की तरह. और हम क्लियरली देख सकते हैं सिमेट्री ऑपरेशंस फॉर डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो सारे डिफरेंट होते हैं. सिमेट्री ऑपरेशंस हैव बीन क्लासिफाइड इन टू क्लासेस. फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन ऑपरेशन, सेकेंड वन इज पॉइंट ऑपरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसलेशन ऑपरेशंस. In such operation, the crystal assumes the identical conditions before and after the translation by any translation vector. Vector t is equals to n1 vector a plus n2 vector b plus n3 vector c. The set of all possible vector t vectors corresponding to different possible values of integers n1, n2, n3 forms a translation group. The translation vector are known as symmetry elements. Second one is point operation. In this type of operations, at least one point of the crystal remains unaffected. Rotation about some axis and reflection through some plane are main operation of this type. Symmetry operations दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है ट्रांसलेशन ऑपरेशन. ये ऐसे टाइप का ऑपरेशन है कि जहाँ क्रिस्टल को एज्यूम किया जाता है आइडेंटिकल कंडीशंस के साथ, और उसके पहले और उसके बाद में जो ट्रांसलेशन वेक्टर है वो वेक्टर t इज इक्वल्स टू n1 वेक्टर a प्लस n2 वेक्टर b प्लस n3 वेक्टर c मिले. और जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वेक्टर t है वो डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ के साथ n1, n2 और n3 का जो फॉर्म है वो ट्रांसलेशन ग्रुप बनाए. और द ट्रांसलेशन वेक्टर्स आर नोन एज सिमेट्री एलिमेंट्स. मतलब ऐसे जो ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं उसे हम सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं. अब जो पॉइंट ऑपरेशन है उसमें क्या है, तो इन दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब जो क्रिस्टल का है 3 पॉइंट या जो भी पॉइंट्स हैं उसमें से एक जो पॉइंट है वो अफेक्ट नहीं होता, मतलब अनअफेक्टेड रहता है. और उसमें सिर्फ रोटेशन अबाउट सम एक्सिस होता है या तो फिर रिफ्लेक्शन थ्रू सम प्लेन होता है. यही उसका मेन ऑपरेशन रहता है. और ऐसे जो टाइप है उसे हम पॉइंट ऑपरेशन कहते हैं. इन सम केसेस फर्स्ट एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन is given which is followed by the point operation and crystal is brought to the identical condition. Such operations are known as compound operations. Moreover, a crystal may have inversion symmetry. In an inversion operation, all the points x, y, z of the crystal are assumed to be transformed into minus x, minus y, minus z. In doing so, the crystal looks identical. The origin with respect to which
x, y, z are determined remains unaffected. Here origin is known as center of symmetry. In the inversion operation translation, vector t becomes minus vector t. If it is possible to find a plane or planes in the crystal such that lattice points on one side of the plane can be arranged as mirror image of the points on the other side, then the crystal is said to possess the mirror image or mirror plane symmetry. The plane is known as mirror plane, which is a symmetry element. If a crystal can be brought to its identical looking condition by rotating it around some axis through an angle of 2 pi by n is an integer, then it has a rotational symmetry. The said axis is symmetry element and is known as n-fold symmetry axis. The point of inversion, mirror planes and rotational axis are known as a symmetry elements. The simplest symmetry operation is not to carry out any operations. The best work is not to do any work. This operation is known as an identity operation. कुछ केसेस में क्या होता है कि जो एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है वो पॉइंट ऑपरेशन का रहता है एंड क्रिस्टल जो होता है वो आइडेंटिकल कंडीशन में रहता है. ऐसे जो ऑपरेशन है उसे हम कंपाउंड ऑपरेशंस कहते हैं. अ क्रिस्टल में हैव इन्वर्जन सिमेट्री, मतलब यहाँ क्रिस्टल की जो है इन्वर्जन सिमेट्री रहती है और उसे इन्वर्जन ऑपरेशन कहा जाता है. और उसके जो पॉइंट्स है वो एक्स वाई जेड की जगह पे क्रिस्टल को हम एज्यूम करेंगे कि वो -x, -y और -z रहेंगे और ये जो क्रिस्टल है वो भी आइडेंटिकल ही रहता है. और जो ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड रहता है वो अनअफेक्टेड रहता है और हमारा जो ओरिजिन है नोन एज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो इन्वर्जन ऑपरेशन के लिए ट्रांसलेशन वेक्टर t जो होता है वो -t हो जाता है. इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड अ प्लेन, अगर हम प्लेन को फाइंड करें क्रिस्टल के साथ तो क्रिस्टल रेटाइज जो है वो पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन कैन बी रिगार्डेड एज अ मिरर इमेज. मतलब उसका जो दूसरी साइड है पॉइंट का, जो हम सेंटर लेते हैं प्लेन का, उसके दूसरी साइड जो बनता है उसे हम उसका मिरर इमेज कह सकते हैं. ऑन द अदर साइड देन द क्रिस्टल इज सेड टू पोजेस द मिरर इमेज और मिरर प्लेन सिमेट्री. मतलब जो सामने हमें दिखाई देता है एक साइड t रहता है तो सामने ट्रांसवर्स t -t बनता है, तो वो जो है उसका मिरर इमेज या मिरर सिमेट्री या प्लेन सिमेट्री हम उसे कहेंगे. द प्लेन इज नोन एज अ मिरर प्लेन, वो प्लेन को हम मिरर प्लेन कह सकते हैं. और जो सिमेट्री एलिमेंट है, इफ़ अ क्रिस्टल कैन ब्रॉट टू इट्स आइडेंटिकल लुकिंग कंडीशन बाय रोटेटिंग इट अराउंड सम एक्सिस, तो वो जो एंगल है वो 2 पाई बाई n का होगा, जहाँ n हमारा इंटीजर है और जो हमारी रोटेशनल सिमेट्री हमें मिलती है. ठीक है, तो द सेड एक्सिस इज सिमेट्री एलिमेंट एंड नोन एज, मतलब जो एक्सिस है अब सिमेट्री एलिमेंट कहा जाता है उसे हम n फोल्ड सिमेट्री एक्सिस कह सकते हैं. और यहाँ पे जो पॉइंट का इन्वर्जन है, मिरर प्लेन्स हैं, रोटेशनल एक्सिस हैं, ये सब हमारे सिमेट्री एलिमेंट्स हैं. और सिंपलेस्ट सिमेट्री ऑपरेशन क्या है, तो कुछ भी ऑपरेशन ना होना वही सिमेट्री का सिंपलेस्ट सिमेट्री ऑपरेशन है. मतलब किसी काम को ना करना वही हमारा अच्छा काम है. तो दिस ऑपरेशन इज नोन एज आइडेंटिटी ऑपरेशन, और ऐसे ऑपरेशन को हम आइडेंटिटी ऑपरेशन कहेंगे. टू अंडरस्टैंड द सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स, कंसिडर अ स्क्वायर एज शोन इन फिगर 9. द फ्रंट एंड रियर साइड्स here will not be regarded as identical. There are 8 symmetry operations. First of all, identity operation E. Second one, 2 reflection operation with planes passing through mx and my. Third one, 2 other reflection operations through the planes
passing through MD and MD dash. Here the mirror planes are perpendicular to the plane of the square. Fourth one, 3 rotation operations around a fourfold axis passing through O and perpendicular to the plane of the square. These rotations are through 90 degree, 180 degree और 270 डिग्री. सिमेट्री ऑपरेशंस एंड सिमेट्री एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक स्क्वायर कंसीडर करना होगा जो फिगर 9 में दिया गया है, जिसकी फ्रंट एंड रियर साइड्स दी है जो आइडेंटिकल नहीं है. तो 8 सिमेट्री उसकी क्या है, यहाँ के जो स्क्वायर दिया गया है उसके ऑपरेशन सिमेट्री ऑपरेशन में 8 कुछ एक जैसा कुछ मिल रहा है. सिमेट्री ऑपरेशन 8 है जो क्या है, पहले तो आइडेंटिटी ऑपरेशन ई वो फर्स्ट ऑफ ऑल है. उसमें 2 रिफ्लेक्शन ऑपरेशन विथ प्लेन पासिंग थ्रू mx एंड my, 2 रिफ्लेक्शन ऑपरेशन होता है. उसके बाद थर्ड वन जो है वो अदर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन होता है, पर वो किसके लिए होता है, MD एंड MD डैश के लिए. और वो जो है वो मिरर प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर. मतलब ये जो मिरर प्लेन्स है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के, और प्लेन जो है स्क्वायर का उसके. और फोर्थ वन जो है वो है रोटेशन ऑपरेशन अराउंड द फोल्ड एक्सिस पासिंग थ्रू O. मतलब O से जो भी एक्सिस पास होती है वो सारे जो है और परपेंडिकुलर द प्लेन, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है और एक्सिस जो O से होती है वहाँ से फोल्डेड है. और उसका जो रोटेशन है 390 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री का दिया गया है. हाइब्रिड ऑपरेशन. अर्लियर वी हैव जस्ट मेंशन अबाउट कंबाइंड hybrid operation. Now let us discuss them with some details. See the following figure. Figure shows that if we rotate the crystal in anti-clockwise way, that is, if we give an improper rotation, then lattice point A goes to B. Now we give reflection by the mirror M and bring A finally to A dash lattice point. We get in fact an inversion operation in which the lattice looks the same as it was originally seen. हाइब्रिड ऑपरेशन क्या होता है, हम किसी भी ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो हाइब्रिड ऑपरेशन होता है. जैसे यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि हम किसी क्रिस्टल को एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो है प्लस के पहले एडिशन जो हो रहा है उससे पहले एक फिगर है OA में डार्क ब्लैक लाइन है, बाकी सारा जो फिगर है वो डॉटेड लाइन में Y के शेप में दिखाया गया है. तो जब हम OA को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो वो बनना चाहिए OB. पर यहाँ पे हम दूसरा ऑपरेशन ऐड करते हैं, एक हम एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाते हैं, उसके साथ साथ मिरर इमेज डालते हैं और वो जो मिरर है वो हमें OA को OB की तरह दिखना चाहिए था, पर उसका जो रिफ्लेक्शन आता है वो OA डैश आता है. और ये जो ऑपरेशन है उसे हम हाइब्रिड ऑपरेशन कहते हैं. सच कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन इज नोन एज अ रोटरफ्लेक्शन. मतलब इम्प्रॉपर रोटेशन जो है वो प्लस रिफ्लेक्शन दोनों मर्ज होके रोटरफ्लेक्शन बनाते हैं और वो हमारा हाइब्रिड ऑपरेशन है. रोटो इन्वर्जन. हियर द क्रिस्टल लेटाइस is first rotated about n-fold axis and then inversion operation is carried out. The rotation axis is taken as improper. This operation is denoted by n bar. Screw translation. In some crystals, the symmetry is such that we can take n-fold rotation and then take translation operation parallel to rotation axis. With this hybrid operation, the lattice looks the same. The operation shown in the figure below is denoted by 2-1. The rotation axis is called screw dive. रोटो इन्वर्जन जो है उसमें पहले क्रिस्टल लेटाइस को रोटेट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल
एन फोल्ड एक्सिस में, और उसके बाद ऑपरेशन जो है हमारा रोटो इन्वर्जन का वो हो सकता है, और वो जो ऑपरेशन है उसे हम डिनोट कर सकते हैं एन बार से। उसके बाद है स्क्रू ट्रांसलेशन। द सिमेट्री इज सच दैट वी कैन टेक एन फोल्ड रोटेशन, मतलब इसमें भी एन फोल्ड रोटेशन जो है क्रिस्टल के वो करने हैं, और फिर ट्रांसलेशन ऑपरेशन हो सकता है पैरेलल टू रोटेशन एक्सिस, मतलब जो हमारा रोटेशन एक्सिस है उसको पैरेलल रख के हमारा ये जो ट्रांसलेशन ऑपरेशन है वो हो सकता है। विथ दिस हाइब्रिड ऑपरेशन द लेटाइस लुक्स द सेम, मतलब इसमें जो लेटाइस है वो जैसा पहले दिखता था वैसा ही दिखता है, पर जैसे हमें फिगर में बताया गया है कि 1 की साइड से हम रोटेट करके 2 की साइड आते हैं, तो वो जो है वो हमारा स्क्रू जैसे हम कहीं लगाते हैं तो वो कैसे होता है कि अंदर से बाहर खुलता है, तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट से बाहर आता है, तो 1 जो है वो 2 पर जाता है, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, ऐसे वो रोटेट होते होते बाहर आ सकता है, और उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रू डाइट कहेंगे। और ये जो रोटेशन है हमारा वो स्क्रू ट्रांसलेशन के हाइब्रिड ऑपरेशन से जाना जाता है। इन द फिगर अबोव वी हैव शोन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अ लेटाइस, a rotation by 2 pi by n with n is equals to 2 leads lattice point 1 to point 2, then translation parallel to the rotational axis takes point 1 finally to point 3, मतलब फिगर में जो बताया गया था उसमें जो रोटेशन है वो लेटाइस ए का हो रहा है 2 पाई बाई एन, जहाँ पे n इज इक्वल्स टू हम 2 लेते हैं, मतलब हमें जो रोटेशन करने हैं वो 2 है। तो अब वो कैसे होंगे, तो 1 पॉइंट है वो हमारा स्टार्टअप पॉइंट है, तो वहाँ से फर्स्ट रोटेशन होगा पॉइंट 2 पर जाएगा, और पॉइंट 2 के बाद जो ट्रांसलेशन है वो फाइनली कहाँ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3 पर जाएगा। तो जब पॉइंट 1 है हमारा वो पॉइंट 3 पर चला जाता है, तो ये जो हमारा रोटेशन है वो कंप्लीट होता है, और यही हमारा हाइब्रिड ऑपरेशन हो जाएगा फॉर स्क्रू ट्रांसलेशन के लिए। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज ग्लाइड रिफ्लेक्शन। इन सम लेटाइस वी कैन फर्स्ट कैरी आउट द मिरर रिफ्लेक्शन and then we can have translation parallel to the mirror. This combined operation again repeats the original appearance of the lattice. If vector A, vector B and vector C are primitive translation vector, then the possible translation here are vector A by 2 plus vector B by 2 and vector b by 2 plus vector c by 2. The translation vector b by 2 plus vector c by 2 gives finally the identity operation and hence not taken. यहाँ हम ग्लाइड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। कुछ लेटाइस ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट कैरी आउट द मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब पहले मिरर रिफ्लेक्शन होता है, एंड देन वी कैन हैव ट्रांसलेशन पैरेलल टू मिरर, मतलब उसके बाद हम ट्रांसलेशन करते हैं पैरेलल टू मिरर, मिरर से पैरेलल रख के ट्रांसलेशन होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन है ऑपरेशन का वो अगेन एंड अगेन रिपीट होता है ओरिजिनल अपीयरेंस के साथ। और ऐसे जो लेटाइस होते हैं उसे जो ऑपरेशन से ये मूव होता है या काम करता है उसे ग्लाइड रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो हाइब्रिड ऑपरेशन है। ये हाइब्रिड ऑपरेशन का थर्ड पार्ट है, और यहाँ पे हमारा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर है, वो जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसका पॉसिबल ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, तो वेक्टर ए बाई 2 प्लस वेक्टर बी बाई 2 एंड वेक्टर बी बाई 2 प्लस वेक्टर सी बाई 2। जो ट्रांसलेशन हमें मिलेगा वो वेक्टर बी बाई 2 प्लस वेक्टर सी बाई 2 है, वो फाइनली आइडेंटिटी ऑपरेशन है, जो यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है, पर यहाँ पे प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर जो है उसके पॉसिबल जो ट्रांसलेशन है वो 2 होते हैं, और वो ट्रांसलेशन पैरेलल टू मिरर, मतलब मिरर रिफ्लेक्शन के साथ किए जाते हैं, और ये हमारा ग्लाइड रिफ्लेक्शन होता है। आज के लेक्चर में हमने सिमेट्री ऑपरेशंस देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम
पॉइंट ग्रुप्स के बारे में और स्पेस ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पन साइंस कॉलेज।